চেনাব অঞ্জেই রেল সেতুর উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর। দেশের বাকি অংশের সঙ্গে জুড়ে গেল কাশ্মীর। নির্মাতাদের দাবি বড় ঝড় এবং ভূমিকম্পেও কাঁপবে না এই সেতু। 3 ঘন্টার মধ্যে কাটরা থেকে শ্রীনগর জাতীয় পতাকা হাতে সেতুর ওপর হাঁটলেন নব। আমাদেরকে আরো একবার জানিয়ে রাখি, চেনাবঞ্জে রেল সেতুর উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। দেশের বাকি অংশের সঙ্গে জুড়ল কাশ্মীর। আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের গ্রুপ এডিটর ইন চিফ ঋতব্রত ভট্টাচার্য। ঋতব্রত, আজকের দিনটা মনে হয় ইতিহাসের খাতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কাশ্মীর জুড়ে গেল দেশের বাকি অংশের সঙ্গে। অবশ্যই এটা প্রতীকী হলেও এটা ঐতিহাসিক, তার কারণ সত্যি তো কাশ্মীর জুড়ে গেল এবং যত সময় যাচ্ছে ততই ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য সেটাই গোটা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা হচ্ছে। এবং কোথাও কোথাও অনেকে মনে করছেন ভূ রাজনীতিতে এবং দেশের রাজনীতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আসলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যে ঘোষণাগুলো করছেন, এগুলো তো গোটা দেশের ঘোষণা। এবং এর একদিকে যেমন তাৎপর্য রয়েছে দেশের অভ্যন্তরে, অন্যদিকে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ, এমনকি তথাকথিত পাক অধিকৃত কাশ্মীর অর্থাৎ গিলগিট থেকে বাল্টিস্তান, সমস্ত মানুষ আজকে তাকিয়ে আছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি বলেন। আসলে অনেকেই মনে করেন সেদিন বোধহয় আর বেশি দিন বাকি নয়, যেদিন পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকেও শুরু হয়ে যাবে আন্দোলন। ইতিমধ্যেই আমরা জানি অপারেশন সিঁদুরের পরেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন ঘটনা সামনে এসেছে, যেখানে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সাধারণ বাসিন্দারা তারা এই মত প্রকাশ করেছেন প্রকাশ্যে, একদম রাস্তায় দাঁড়িয়ে, রাজপথে দাঁড়িয়ে, যে তারা ভারতে ফিরে আসতে চান, ভারতের অংশ হিসেবে থাকতে চান। আজকে কোথাও যেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই বার্তা দিলেন কাশ্মীরের মানুষকে, বার্তা দিলেন গোটা দেশের মানুষকে। সার্বভৌমত্ব, অখণ্ড ভারত এবং সেই ভারতের সমৃদ্ধি তার প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো আজকের এই কর্মসূচি, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যদিকে জিও পলিটিক্সে একটা পরিষ্কার আমরা বার্তা দিলাম, যেই সমস্ত বেইমান দেশ যেমন তুর্কি থেকে শুরু করে আজারবাইজান, এরা যেমন জানলো যে ভারতবর্ষ দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে, এবং গোটা পৃথিবীর মানুষ তো জানে যে সংঘর্ষ বিরতির জন্য ফোনটা প্রথম কোথা থেকে এসেছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প যতই বলুন না কেন তিনি সমঝোতা করেছেন, কিন্তু এটা তো ঠিক যে ইতিহাসে লেখা থাকবে পাকিস্তানের ডিজিএমও তাকে ফোন করতে হয়েছে ভারতের ডিজিএমওকে, অর্থাৎ পাকিস্তান ফোন করে সংঘর্ষ বিরতি চেয়েছে, আমরা নই। সুতরাং এই রকম জায়গায় এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে একদিকে যখন আমরা জানি অপারেশন সিন্দুর এখনো বন্ধ হয়নি, প্রতিনিয়ত আমরা লড়াই করে চলেছি। এই লড়াইটা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, এই লড়াইটা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, এবং ভারতবর্ষ তার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। গোটা পৃথিবী জুড়ে, গোটা দুনিয়া জুড়ে, গোটা পৃথিবীকে যেন সেই বার্তা দিচ্ছে, হয় তুমি আমার সঙ্গে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, অথবা তুমি আমার পক্ষে, অথবা তুমি আমার বিপক্ষে। এবং প্রত্যেকটা দেশকে আগামী দিনে এই বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে তাদের বলতে হবে তারা কোন দিকে রয়েছেন। তারা যদি মুখোশ পরে অভিনয় করে থাকেন সেটাও পরিষ্কার হবে। এবং কোথাও যেন আজকে একদিকে এই কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় ক্ষেত্রে তো বটেই, কাশ্মীরের ক্ষেত্রে, তথাকথিত পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ক্ষেত্রে, এবং গোটা বিশ্বের দরবারে আজকে এই কর্মসূচি, তুমি ঠিক যে কথা বলছিলে, ঐতিহাসিক হয়ে রইল, তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে রইল। এবং অনেকে বলছেন যে ভারতের এটা একটা মাস্টার স্ট্রোক। আজকে এই সেতু বন্ধন, পৃথিবীতে নজির সৃষ্টি করা বিভিন্ন কর্মসূচি, এই কর্মসূচিগুলোর মধ্যে দিয়ে ভারত তার সার্বভৌমত্ব, ভারত তার শৌর্যবীর্য, ভারত তার সংঘর্ষ অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর ভারত মাথা উঁচু করে বিশ্বের দরবারে দাঁড়ালো, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রবীণ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য কথা বলছিলাম আমাদের গ্রুপ এডিটর ইন চিফ ঋতব্রত ভট্টাচার্য সঙ্গে। চেনাবঞ্জে রেল সেতুর এই উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। দেশের বাকি অংশের সঙ্গে জুড়ে গেল কাশ্মীর। নির্মাতাদের দাবি বড় ঝড় এবং ভূমিকম্পেও কাঁপবে না সেতু। রিক্টার স্কেলে যদি মাত্রা থাকে 8, ভূমিকম্পের সময় তাও কিন্তু এই সেতু কেঁপে উঠবে না।
3 ঘন্টার মধ্যেই কাটরা থেকে শ্রীনগর জাতীয় পতাকা হাতে সেতুর ওপর দিয়ে হাঁটলেন নরেন্দ্র মোদী। এই সেতু তৈরিতে খরচ হয়েছে 1400 কোটি টাকা। এই চন্দ্রভাগা রেল সেতুর অর্থাৎ চেরা ব্রিজের দৈর্ঘ্য 1.3 কিলোমিটার এবং এই সেতুর উচ্চতা চন্দ্রভাগা নদী থেকে 359 মিটার অর্থাৎ 1177.82 ফুট। ঘন্টায় 100 কিলোমিটার গতি বেগে ট্রেন ছুটতে পারবে এই সেতুর ওপর দিয়ে। নিঃসন্দেহে আজকের এই তিনটি রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক ভাবেও রাজনৈতিক দিক থেকে তো অবশ্যই এটি গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই একটি নয়া ইতিহাসও রচনা করা হলো। এই মুহূর্তে আমরা চোখ রাখবো রেল বলছে অশ্বিনী বৈষ্ণব, তিনি কাঁটায় দাঁড়িয়ে কি বলছেন। श्रीनगर में उपस्थित श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, उप मुख्यमंत्री जी और वर्चुअली जुड़े सभी माननीय मंत्री महोदय, सांसदगण, विधायकगण, रेलवे के अधिकारी, मीडिया के साथियों, कटरा की इस पावन भूमि पर आप सबको मेरा हार्दिक स्वागत है, मेरा नमस्कार है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है साथियों। मां भारती के मुकुट जम्मू कश्मीर में आज एक और रत्न जुड़ा है। आज जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जम्मू श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन का सपना दशकों से देश ने संजोया था। बड़ी कठिनाइयां आई, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी घाटियां, लेकिन प्रकृति को जीतना नहीं, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ब्रिज और टनल के इस नेटवर्क से आज ये रेलवे लाइन हकीकत में बदल गई है। और ये संभव हो पाया है साथियों हमारे प्रधानमंत्री जी के फौलादी इरादों से, कठिन परिश्रम से और लेजर शार्प फोकस से। आइए हम सभी अपने प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिवादन करें। सब खड़े होइए अपने अपनी जगह पे, सब खड़े होइए, आगे पीछे बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथियों, हिमालय की गोद में बने 2 विशेष ब्रिजेस का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। चेनाब का ब्रिज और अंजी ब्रिज। चेनाब का ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से भी ऊंचा। आज चेनाब का ब्रिज दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। वैसे ही अंजी ब्रिज भी पहला रेलवे का केबल ब्रिज है। इस लाइन पर बनी T50 टनल सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है, 12.77 किलोमीटर की। कटरा से बनियाल बहुत ही कठिन सेक्शन था। 2014 के बाद में ही इस पे काम शुरू हुआ। 111 किलोमीटर की इस सेक्शन में 97 किलोमीटर टनल है और 7 किलोमीटर ब्रिज है। यानी एक तरह से पूरा सेक्शन ही टनल और ब्रिज से बना है। हिमालय में ब्रिज और टनल बनाना अति कठिन काम होता है। कई इनोवेशन किए, एक हिमालयन टनलिंग मेथड नया बना। मैं उन सभी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और डिजाइनर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में काम किया। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने आज जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली 2 नई वंदे भारत ट्रेन्स भी आरंभ की है। और जैसा आप जानते हैं जम्मू स्टेशन पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये काम सितंबर के महीने में 3 प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएंगे। इसलिए आज गाड़ी कटरा से चली है, लेकिन ये गाड़ी जम्मू से श्रीनगर की वंदे भारत है। सितंबर के महीने से जम्मू से चलेगी, तो हम सबको जम्मू से श्रीनगर के बीच में सुंदर वादियों को देखते हुए एक नया ऐतिहासिक आनंद मिलेगा। साथियों, मैं इस प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं। जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए आपने कई स्ट्रांग डिसीजंस लिए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और एक बार फिर स्वागत करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद अश्विनी वैष्णव जी, आपने सही कहा। আপনারা শুনলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, তিনি কি বললেন, কতটা কঠিন ছিল এখানে ৯৭ কিলোমিটার টানেল এবং ৭ কিলোমিটার ব্রিজ, অর্থাৎ পুরোটাই এই যে নতুন যে কাটরা থেকে শ্রীনগর যে রাস্তা, এই রাস্তাটা ১১২ কিলোমিটার পুরোটাই কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে হিমালয়ের বুকে এই ট্রেন লাইন বা রেল লাইন তৈরি করা। मोदी साहब, इज्जत माफ रेल मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब, इज्जत माफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा साहब, इज्जत माफ MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, इज्जत माफ MOS रेलवेज जनाब सोमन्ना साहब, इज्जत माफ डिप्टी CM जम्मू कश्मीर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, इज्जत माफ मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर साहब, इज्जत माफ लीडर ऑफ अपोजिशन JNK असेंबली सुनील शर्मा साहब, यहाँ पे आए हुए भाइयों बहनों बुजुर्गों, वज़ीर आज़म साहब, इसको किस्मत कहिए, मुकद्दर कहिए, बीच बीच में जब कभी रेल के कोई बड़े प्रोग्राम हुए तो कहीं ना कहीं मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ उसमें, जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वज़ीर आज़म साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे, 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वज़ीर आज़म बने थे, इलेक्शन के ठीक बाद आप यहाँ आए और आपने माता की कृपा से यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वज़ीर आज़म इस मुल्क के बने रहे। आपके साथ आपके MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज़ की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। और ख़ुद मैं वज़ीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वज़ीर आला था, अब UT का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। वज़ीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहाँ तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेज़ों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें। लेकिन आज जो अंग्रेज़ पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ज़रूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया। और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं, अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ।
और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा होगा, लोगों का आना जाना रहेगा, टूरिज्म से इसको फायदा होगा, यहाँ के रहने वालों को फायदा होगा। जैसे मैं आपको अभी कह रहा था, यहाँ बारिश पड़ते ही जब हाईवे बंद हो जाता है तो जहाज वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जो 5,000 की टिकट होती है वो अचानक घंटों के अंदर 20,000 की टिकट हो जाती है। इस रेल के बनने से कम उन जहाज वालों की जो लूट रहती है टिकटों की वो कम हो जाएगी और हमारा आना जाना आसान रहेगा। इसी तरह हमारा मेवा, हमारा फ्रूट, कश्मीर के सेब, कश्मीर के चेरी, कश्मीर के और सारी चीज़ें जो हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब रेल के ज़रिए मुल्क के बाकी मार्केटों में इनको पहुंचाने का काम होगा और दुनिया भर की मार्केटों में जो है वो हम पहुंचा पाएंगे। वज़ीर आज़म साहब, आज आपके शुभ हाथों से ये एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का जो है मुकम्मल हुआ है। इसी तरह के कई और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जम्मू का रिंग रोड हो, चाहे श्रीनगर का रिंग रोड हो, चाहे दिल्ली अमृतसर कटरा का एक्सप्रेसवे हो, चाहे जम्मू श्रीनगर 4 लेनिंग हाईवे का काम हो, जम्मू एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, श्रीनगर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, जम्मू ये रेलवे के नेटवर्क का एक्सपेंशन, इन सब चीज़ों को जो है तेज़ी से मुकम्मल करके हमारा पूरा इरादा है और हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जो विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत का जो आपने नारा दिया है उसको पूरा रंग भर के हम मुकम्मल करके यहाँ के लोगों के हवाले कर लेंगे। लेकिन आज इस मौके पे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से वज़ीर आज़म साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से इस मौके पे शुक्रिया और मुबारकबाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। विनम्र अनुरोध है माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि कृपया संबोधन के लिए पधारें। माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। শুনলেন জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর বক্তব্য, যেখানে দাঁড়িয়ে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং এই কৃতিত্বর অনেকটাই দিয়েছেন তিনি প্রয়াত বাজপেয়ীকে। আপনাদেরকে আরও একবার জানিয়ে রাখি, চেনাব সেতুর উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, একই সঙ্গে বন্দে ভারতেরও উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।